میری شادی کو دوسرا دن تھا۔ مجھے علیمالدین کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی۔ ابا نے ہی میرا رشتہ پکا کیا تھا۔ میری شادی بھی صرف اور صرف میرے ابا کے اکیلے فیصلے پر تھی۔ میری اماں نہیں چاہتی تھی کہ میں علیمالدین کی دلہن بنوں، مگر ابا علیمالدین کی اتنی تعریفیں کرتے کہ ہمارے خاندان کا ہر فرد علیمالدین کا گرودید ہو گیا۔ علیمالدین نے بتایا تھا کہ وہ ایک پیش امام ہے، مسجد میں امامت کرواتے ہیں اور نماز روزے کی پابندی بھی۔ یہی چیز میرے ابا کو اچھی لگی تھی، پر میں آج صبح اٹھی تو علیمالدین سو رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پیش امام ہو کر وہ ساری رات کیسے سو سکتے ہیں، جبکہ امام کو چاہیے وہ صبح سویرے جا کر مسجد میں جا کر اذان دے اور اپنے فرض کی ادائیگی کرے، مگر علیمالدین نماز کے پابند نہیں نکلے۔ صبح وہ کافی دیر سے اٹھے تو میں نے شکوہ کر ڈالا، علیمالدین آپ نے آج نماز ادا نہیں کی، کتنی بری بات ہے، تم میری ماں مت بنو۔ علیمالدین نے انتہائی مبجٹ لہجے میں کہا اور میں اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ مجھ سے شادی کے پہلے دن ہی لڑائی ہوگی۔ میں علیمالدین سے اس بات پر خفا تھی، جبکہ وہ اس چیز پر غصہ کر رہے تھے کہ میں ان سے پوچھنے والی ہوتی کون ہوں۔ خیر میں نے اس بات کو نظر انداز کیا۔ ظہر کی نماز پڑھنے وہ مسجد میں چلے گئی۔ مجھے خوشی ہوئی اور افسوس بھی کہ میں نے خواہاں علیمالدین پر شک کیا۔ اب وہ تقریباً سبھی نمازیں مسجد میں پڑھتے، رات کو وہ آتے تو تھکے ہارے ہوتے، کہتے کہ مسجد میں محفل ہوتی ہے۔ میں بہت تھک جاتا ہوں۔ میں بھی ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ میرا شوہر اتنی بڑی ذمہ داری جو چلا رہا تھا، میں کیسے اس کو نظر انداز کر سکتی تھی۔ اگلے دن کی بات ہے، علیمالدین کچھ پریشان سے گھر آئے تھے۔ میرے کہنے پر بھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا، ساری رات جاگتے رہے۔ سوتے ہوئے بھی میری آنکھ کھلتی تو دیکھتی کہ علیمالدین کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ میں ان کی پریشانی میں ان کا غم ہلکا کرنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ پھر میں بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ اگلے دن تک وہ خود ہی ٹھیک ہو گئے۔ گھر آئے تو خوش تھے، کہنے لگے کہ آج میں اپنی بیوی کو حلوہ بنا کر کھلاؤں گا۔ ان کے ہاتھ میں گاجریں بھی تھی اور چینی بھی وہ ساتھ لائے تھے۔ حالانکہ ہمارے گھر میں کھانا بہت زیادہ پکتا تھا، مگر علیمالدین آج کسی خاص اہتمام کے موڈ میں تھے۔ رات جو کھانا کھانے کے بعد خود ہی کچن میں چلے گئے، گاجر کا حلوہ بنایا اور مجھے پیالہ بھر کر دیا۔ میں بہت خوش ہوئی کہ میرا شوہر روایتی مردوں جیسا نہیں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ذرا دروازہ بند کر لو، میں باہر جا رہا ہوں۔ آج مسجد میں ایک محفل ہے، وہاں پر مجھے حاضری بھی دینا ہے اور کچھ لوگوں سے بات چیت بھی کرنی ہے۔ ان کے جانے کے بعد میں اداس ہو گئی، مگر میں جانتی تھی میرا شوہر بہت محنتی ہے۔ وہ لوگوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو شدید ڈر محسوس ہوا۔ چھت پر سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ میں دیکھ کر ڈر گئی، اچھے سے اٹھ کر کمرے کی کنڈی بند کی، مگر پھر تسلی نہ ہوئی تو دروازہ کھول کر سبھی باہر کے دروازوں کو دیکھا۔ دروازے اچھی طرح سے بند تھے۔ میں نے اپنے کمرے کی کنڈی چیک کی اور دوبارہ کمرے میں آ کر سو گئی، مگر چھت پر وہ آوازیں بدستور آ رہی تھی۔ ڈر کے مارے میرا برا حال تھا۔ سوچ رہی تھی کہ علیمالدین نہ جاتے تو اچھا ہوتا۔ اگلے دن وہ تقریباً صبح 10 بجے گھر آئے تو میں نے انہیں شکوہ کیا، علیمالدین اس گھر میں آپ کے ہوتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ خدا کے لیے رات کو گھر سے باہر نہ جایا کریں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ آدھی رات کے وقت کوئی ہماری چھت پر کود آتا ہے، آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں کیا؟ علیمالدین نے مجھے ڈانٹ دیا، آیت الکرسی پڑھ کر سو جایا کرو، جان اور مال کی حفاظت خود ہو جاتی ہے۔ ان کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی، مگر روزانہ یہی تماشا ہونے لگا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ ہر چھت پر جا کے دیکھوں تو صحیح کہ ہماری چھت پر کیا ہوتا ہے، اور یہی سوچ کر میں چھت پر چلی گئی۔ آج شادی کے بعد پہلی بار اپنے گھر کی چھت دیکھ رہی تھی۔ چھت کی ایک طرف چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا، باقی چھت کھلا اور صاف ستھرا تھا، مگر مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوتی کہ چھت پر بے شمار پیالے پڑے ہوتے تھے۔ ان کاغذی برتنوں میں ہلکی ہلکی کھیر کی تہ بھی لگی ہوتی تھی۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا تو سمجھ گئی کہ یہ برتن کھانے پینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تقریباً 4-5 کے قریب برتن تھے، جن میں کسی کے اندر گاجر کے حلوے کے باقیات اور کسی میں دودھ کی تہ جمی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ مجھے لگا کہ یہ بالکل وہی کھیر اور حلوہ ہے جو ہمارے اپنے گھر میں بنتا ہے۔ حلوہ تو ہو وہی تھا، بالکل ویسا ہی رنگ اور ویسے ہی خوشبو، مگر میں نے شک کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ سوچا شاید دوسری چھت سے بچوں نے اس طرف کوئی خالی برتن پھینک دیے ہوں۔ میں نے صاف صفائی کر دی اور اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ اس سے اگلے دن علیمالدین کو گاؤں میں کسی کام سے جانا تھا۔ علیمالدین کے جانے کے بعد میں بہت ڈر رہی تھی۔ سوچا آج میرا وقت نہ جانے کیسے کٹے گا، مگر شام ہوتے ہی میں پرسکون نیند سو گئی۔ صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی
आज किसी भी किस्म की परेशानी मुझे रात को नहीं हुई थी। मैं बड़ी हैरान हुई। कामकाज खत्म करने के बाद छत पर गई तो देखा आज वहां पर वो बर्तन नहीं पड़े थे और ना ही पहले जैसा घास फूस वहां मौजूद था। मगर ऐसा 1-2 दिन ही हुआ था। जैसे ही अलीमुद्दीन गांव से वापस आए, अगले ही रात को फिर वो शोर, फिर वही आवाजें आने लगी। सुबह अलीमुद्दीन के सोने के बाद मैंने ऊपर छत पर जाकर देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वहां पर हमारे घर के यानी हमारे किचन के बर्तन पड़े थे और हलवे वाली छोटी छोटी प्लेटें भी मौजूद थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। अलीमुद्दीन आहर मुझसे क्या छुपा रहे थे। मैं आज उनके जाने का इंतजार करने लगी। उनके जागने पर मैंने उनको गाजर और हलवे वाले बर्तन दिखाए तो हंसकर कहने लगे, तुम खामखा मुझ पर शक करती हो। मैंने तो तुम्हारी मदद के लिए ये सारे बर्तन छत पर रखे थे ताकि उन्हें धूप लगवा लूं। जानती हो पिछले दिनों मेरे चाचा मनीर कर आए थे। उनको टीबी है और टीबी की तशख़ीस कल परसों ही हुई है। मैंने सोचा कि कहीं हम भी ऐसी बीमारी में ना लग जाएं, इसलिए कुछ बर्तन छत पर रख दिए हैं और बाकी आज तुम मेरे साथ मिलकर छत पर रखवा दो। बिस्तर वगैरह भी हम छत पर ही डाल देते हैं। धूप लगेगी तो सारे जरासीम मर जाएंगे। अपने शोहर की यह बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुई। मैं न जाने क्या सोच रही थी कि वो मुझसे खाना बनवा कर ज़ाया करते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। और सुबह हम दोनों ने मिलकर छत पर बिस्तर वगैरह फैलाकर रख दिए। मेरे शोहर अलीमुद्दीन सफाई के बहुत पाबंद थे और सफाई पसंद थे, इसलिए मैं घर की नफासत का खास ख्याल रखती थी। शाम हुई तो वह सब बिस्तर वगैरह उतार कर कमरों में रख दिए और कुछ संदूक में बंद कर दिए। उसी शाम जब मैं छत पर खड़ी थी तो मेरी सामने वाली छत पर खड़ी एक औरत से मेरी मुलाकात हो गई। उस वक्त अलीमुद्दीन घर पर मौजूद नहीं थे। मुझसे बात करते हुए वो मुझे मशकूक नज़रों से देख रही थी। फिर मुझे राजदारी के अंदाज में बताने लगी, सुनो बहन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। अगर तुम नाराज ना हो तो फिर कहूँगी। मैंने कहा, आप मुझे बताएं, मैं किसी से जिक्र नहीं करूँगी। तभी वो कहने लगी कि तुम्हारी छत पर तुम्हारा शोहर रोज़ 2-3 लोगों को लेकर आता है। वो लोग कौन हैं, औरतें हैं या मर्द, इस बारे में मैं नहीं जानती, मगर उनकी आवाज़ें बारीक और सुरीली होती हैं। ये बारीक आवाज़ में कुछ गुनगुनाते हैं या पढ़ते हैं, ये तो मैं नहीं जानती। मगर रात को 3-4 बार मैंने खुद तुम्हारे शोहर को छत पर देखा है। ये उन लोगों की बहुत सेवा करता है। न जाने ये कौन लोग हैं जिनके लिए ये पूरी रात जागता है। न जाने तुम कहाँ होती हो। अपने शोहर पर नजर रखा करो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे कामों में पड़ने के बाद मुश्किलात तुम्हारे लिए भी पैदा हो सकती हैं। औरत की बात सुनकर मुझे यकीन नहीं आया। मैं जानती थी कि वह यूं ही पढ़कर उड़ा रही है, मगर बात कोई भी हो, जैसी भी हो, उसके पीछे कोई ना कोई वजह या कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। मैंने भी दिल में तहैया कर लिया कि अपने शोहर पर नज़र रखूंगी, मगर उन्हें शक नहीं होने दूंगी। अब मैं अलीमुद्दीन की निगरानी करने लगी, मगर वो भी कुछ मुहतात हो गए थे। रात को उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया। मुझसे बार बार इजहार मोहब्बत करते और कहते कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझे छोड़ के नहीं जाना। मैं अपने शोहर की बात सुनकर काफ़ी परेशान होती कि मुझसे ऐसी बातें क्यों करते हैं। हालांकि मैंने कभी उनसे कोई फरमाइश नहीं की थी, ना ही घर से जाने की कोई धमकी दी थी। मैं तो खुशी खुशी उनके साथ रह रही थी। अलीमुद्दीन के मोहब्बत भरे रवैये से हम दोनों में मोहब्बत बढ़ने लगी थी। मैंने भी उन पर शक करना छोड़ दिया। वो भी रातों को घर पर रहने लगे थे। अब सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन मेरे सोने के थोड़ी देर बाद मुझे लगा जैसे अलीमुद्दीन कमरे से बाहर जा रहे हों। मैंने सोचा मुझे शक नहीं करना चाहिए और मैं अपनी जगह पर ही लेटी रही। मगर काफ़ी देर के बाद भी जब वो कमरे में ना आए तो मैंने उठकर बाहर देखा। वो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मुझे अचानक ख्याल आया कि छत पर जाकर देखूं तो वैसे उस वक्त छत पर जाने की मेरी हिम्मत ना होती। रात का अंधेरा बहुत खौफनाक होता। लेकिन जैसे ही छत के ऊपर जाने लगी तो वही आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी जो आज से 1 हफ्ता पहले मैंने रात को सोने से पहले सुनी थी। मुझे डर के मारे पसीना आ गया। वापस पलटने से पहले एक बार मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अलीमुद्दीन मुझे 2 नौजवानों के दरमियान बैठे हुए नजर आए। उनके पास छोटे छोटे लड़के बैठे थे जिनकी उम्र 16 से 20 के दरमियान होगी। अलीमुद्दीन उनके दरमियान बैठे थे, जबकि वह सर को दाएं से बाएं घुमाते तो मुझे दीवाने मालूम होते। मैंने सोचा इस वक्त इनके दोस्तों के सामने जाना मुनासिब बात नहीं। मैं तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे शोहर की यह नफसियाती आर्जा कब से है। मैंने किसी को भी बताने से पहले अपने बाबा से बात करने का सोचा। उनको फ़ोन किया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। बाबा कहने लगे, इस वक्त तुम फ़ोन पर मुझसे बात ना करो, ऐसा ना हो कि उसे खबर हो जाए। कल तुम यहीं आ जाओ, हम मिलकर इसका हल निकालते हैं। अगले दिन मैं अलीमुद्दीन से कहा कि आप मुझे मेके छोड़ाएं, मेरे वालिद साहब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, उनको मेरी ज़रूरत है। अलीमुद्दीन खुशी खुशी मुझे मेके छोड़ाए
मैंने वालिद साहब को तफसील से अलीमुद्दीन की हरकत से आगाह किया। तब वो सर पकड़ कर बैठ गए। बोले, काश मैं इस लड़के के बारे में पहले तहकीक कर लेता। मुझे एक दो और लोगों ने भी अलीमुद्दीन के बारे में मशकूक बातें बताई हैं, मगर अब क्या करूं बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैं आज खुद ही जाकर देखूंगा कि अलीमुद्दीन ऐसा क्यों करता है। शाम होने से पहले मैंने अलीमुद्दीन को कॉल की और कहा कि आकर मुझे ले जाएं। मैं अपने घर वापस आना चाहती हूँ। बाबा की तबीयत अब ठीक है, मुझे अपने घर नहीं रुकना। अलीमुद्दीन मेरी बात पर ज़्यादा खुश नहीं हुए। आकर मुझे मैके से अपने घर ले गए। घर जाकर मैंने उनसे कोई खास बात नहीं की। मेरा रवैया उनके साथ पहले जैसा ही था। मेरे प्लान के मुताबिक वालिद साहब ने शाम के 7-8 बजे हमारे घर आना था, मगर अलीमुद्दीन आज कुछ ज़्यादा ही एक्टिव लग रहे थे। उनकी बातों से लग रहा था वो नहीं चाहते कि मैं ज़्यादा देर तक जागूं। मैंने भी बाबा को फ़ोन करके थोड़ा लेट आने का कहा और ख़ुद भी सो गई। मैंने जब अलीमुद्दीन को कमरे से बाहर जाने के बाद अपने बाबा को फ़ोन किया, उन्हें कहा कि अब आप घर आ जाएं, अलीमुद्दीन छत पर चले गए हैं। बाबा जान मेरे फ़ोन के लिए मुंतज़िर थे। थोड़ी देर के बाद वह हमारे घर के सामने खड़े थे। मैंने उन्हें दरवाज़ा खोलकर अंदर बुला लिया। उन्होंने अलीमुद्दीन के बारे में मुझसे और भी पूछगछ की और फिर वो दबे कदमों से छत पर चले गए। उनके जाने के बाद मैं भी उनके पीछे पीछे गई। छत से तेज़ आवाज़ें आ रही थी। वालिद साहब भी ऊंची ऊंची आवाज़ में अलीमुद्दीन से पूछताछ कर रहे थे और अलीमुद्दीन अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश कर रहा था। फिर वालिद साहब गुस्से में भरे हुए मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे कि इस हबीस के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरे साथ घर चलो, अभी और इसी वक्त तुम्हें लेकर जाऊंगा। मगर अलीमुद्दीन ने मुझे घर से जाने से मना कर दिया। मैं बहुत मजबूर थी कि अपने बाप का हुक्म मानूं या अपने शोहर का। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वालिद साहब गुस्से में भरे घर से निकल गए। उनके जाने के बाद मैं फूट फूट कर रो रही थी। वो जान गए थे कि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती, मगर अब अलीमुद्दीन के गुस्से का शिकार भी मैं भी हुई थी। उनके जाने के बाद अलीमुद्दीन मुझ पर बरस पड़े थे। कहने लगे कि तुमने ही अपने बाप को घर पर बुलाया है, तुम नहीं चाहती कि मैं कोई काम करूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने मेरे साथ कितनी बड़ी चालाकी करने की कोशिश की है। अलीमुद्दीन की बातों ने मुझे अधमवा कर रख दिया। मैंने सोचा कि मैं वालिद के घर ही चली जाऊं। कम अज कम इस शख्स के ताने सुनने से तो बेहतर है कि अपने बाप की डांट सह लूं। मैं अपने बाबा के घर चली गई। वो मुझे देखकर रो पड़े थे। मैंने कहा, बाबा आप कुछ तो बताएं, अलीमुद्दीन ने आखिर ऐसा क्या किया है? अलीमुद्दीन ने आखिर ऐसा क्या किया है कि आपने मुझे घर से जाने को कहा था? मैं उस वक्त नहीं आ सकती थी। अलीमुद्दीन बहुत गुस्से में थे। अब आप मुझे बताएं कि अगर कोई गलत बात होगी तो मैं अलीमुद्दीन का साथ नहीं दूंगी। वैसे भी वो आपकी ही पसंद थे, मैं तो बस सब्र से काम ले रही थी। तभी मुझे बाबा ने अलीमुद्दीन के बारे में तफसील से बताया। बेटी, तुम्हारी शादी करने के बाद मैं अलीमुद्दीन पर बहुत एतमाद करता था, मुझे उस पर बहुत फख्र था, मगर मैंने उसके बारे में उसके महल्लेदारों से ज़्यादा पूछताछ नहीं की थी। मैं समझता था कि उसकी शख्सियत ही उसकी आईनादार है, इसलिए मैंने उस पर यकीन किया। मगर एक हफ्ते के बाद ही मुझे उसका पता चल गया कि अलीमुद्दीन मस्जिद में पेश इमाम नहीं, बल्कि वो तो एक पीर का चेला है और उसके लिए काम करता है और उसी के मरीदों के दिए हुए हदिये पर उसका घर चलता है। ये बात बहुत अफसोसनाक थी। मैंने सोचा कि मैं अलीमुद्दीन को कोई अच्छा कारोबार सेट करके दूंगा ताकि वो अपना घर हलाल और सही तरीके से चला सके, मगर अलीमुद्दीन ने इससे पहले ही एक गिरी हुई और नीच हरकत की। उसने पीर से बगावत करके अपना आस्ताना खोल लिया, उसके सभी लड़कों को वरगला लिया, उनसे कहा कि मैं तुम लोगों को खाना पीना, रहाइश, सभी कुछ का बंदोबस्त करके दूंगा और तुम्हें खास अमल भी बताऊंगा। अलीमुद्दीन तो खुद अनपढ़ है, वो कोई अमल वगैरह नहीं जानता। ये सब बेकार की बातें हैं। वो उन लड़कों को भी वरगला रहा है और साथ ही मेरी और अपनी शोहरत भी खराब कर रहा है। बाबा जान की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अलीमुद्दीन एक पीर के यहाँ जाते थे, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। आजकल के डोंगी फकीरों और पीरों से मुझे वैसे भी बहुत नफरत थी, मगर अलीमुद्दीन के इस रवैये ने मुझे बहुत तकलीफ दी। फिर मैंने बाबा और अलीमुद्दीन के दरमियान सुलह करवाने की भरपूर कोशिश की। अलीमुद्दीन पीरी फकीरी का धंधा छोड़ने पर राजी नहीं थे। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से राजी किया और वालिद को भी कायल किया कि वो उन्हें कारोबार सेट करके दें। वालिद साहब ने एक कारोबार सेट करके अलीमुद्दीन के हाथ दे दिया। खुदा ने बरकत दी। मैंने भी अलीमुद्दीन की हौसला अफजाई की और उनको पिछली किसी भी बात का ताना नहीं दिया। आज हालत ये है कि हमारे घर में एक नहीं बल्कि 4-4 मेहमान रोजाना खाना खाते हैं। हमारे घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता और हम मियाँ बीवी अपनी आसूदा जिंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे शोहर कहते हैं कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ना होती तो मैं यूं ही राहरुही का शिकार हो जाता और मेरे हाथ कुछ भी ना आता।
علیم الدین کی بات سن کر میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، اور یہ بالکل درست بات ہے کہ ایک اچھی عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔